Bakery started 18 years ago in February 2006, I think it was, yes. And I started off with the United Nations Population Fund, UNFPA, because they wanted to create awareness against female feticide in India. Started off with that, and then it kind of other issues came up like rape victims who needed assistance, acid attack victims, and then we got into a lot of medical, help for people, and now education since the last 7-8 years. And right now we're educating over 830 to 40 to 50 girls. And today I want to show you where some of these girls have reached with all the help and assistance and support that we've got from the industry and all our family and friends. So that is where we are today. सच्ची बात है, तब कुछ नहीं सोचा, तब खाली ये था कि उनको मदद चाहिए थी, मदद दी. एंड टुडे दे आर sales tax officers working. One is getting to be a doctor soon, one is lawyer, MSc, MBAs, and they're doing brilliantly well now. How many more? Oh, I have got a lot of girls who are close, and they're all moving on in life. And some I don't meet. Sometimes I talk, sometimes I don't talk, but I'm aware of what they're doing and where they've reached. It feels very good to see them move on in life. उनकी families को जो assistance मिलती है, how the families have grown and come out of where they were. Today you'll see, we got an audio visual where we shot in about 10, 12, 15 girls home. So you'll see where they were and where they've reached. So I think one should sit in the show and experience exactly where those girls have come from and where they've reached today. See, I can only do so much. It's a huge country, like you're saying. I can just do that much. I hope to educate as many girls as I can. And I seriously am going to ask today if people are willing to give me money to educate boys. Because a lot of these issues which are happening are from related to boys who may not have had the background of education. So that's where we are today. See, चाहे तो yes, but honestly being very honest, अभी तक मैंने try नहीं किया. I've just been in Bombay because मेरी जो funds मेरे को मिले हैं, they are limited. So मैं अभी Bombay restricted हूँ to this particular education institute. कल का किसी को मालूम नहीं. Maybe we'll reach where you're saying we should reach. Thank you. उसको आज हम मतलब इंजॉय करेंगे कि बेटियाँ कितनी इम्पोर्टेंट होती है. वो आज मेरी बेटी भी बताएगी कि कितनी इम्पोर्टेंट है औरों की बेटी के लिए. No, I'm very happy that I'm a part of this movement too. And बहुत
अच्छा लगता है जब women को celebrate किया जाता है. And I have a very supportive father and a very supportive family, so that way मैं बहुत blessed हूँ. और ऐसे ही I think important है हम एक साथ चले और support करें दूसरे को. हाँ बिल्कुल, आज जो मेरी शुरुआत होने वाली है पंचायत के जो प्रधान जी है रघुवीर यादव, उनसे शुरुआत होगी मेरी. अरे भैया क्या बताएं हैं, अरे ससुराल जो है बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है. अरे हमारी बेटिया रिंकिया है ना, रिंकिया सब जानते हैं, तो हम सोचे अपनी बिटिया को लेकर आए, लेकिन हमारी बिटिया रिंकिया तो पहुंच गई है विदेश, इसलिए VIP की बिटिया को लेकर आए हम ससुराल. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई. Thank you so much. थैंक यू. Thank you. I think it's a fantastic initiative, and I think Anu Aunty is just amazing that she's continued to do this for so very long. And of course, to support women and girls is always beautiful because they do need that jump start, and to get that is amazing. Thank you so much. Thank you. What? The question's to me? Adi. Oh, sorry. Yes, it's been 18 years of Beti. My association with Beti has been for 7 years, and I'm extremely proud and extremely honored. I have a separate connection with Beti as well. It was the event, it was the cause that I met her, and I've been extremely fortunate. And yes, there is a move towards a better world, but अभी भी कुछ कदम हमने लिए हैं और काफ़ी कुछ कदम लेने बाकी हैं. I would just like to say that this cause makes me a better person, and I'm really proud that I am born in a family where people care about other people who have
gone out of their way to start an initiative like this, which I can proudly be associated with. So I'm very happy, I'm very proud, and 18 years is too short. We need to go on at least a minimum of 800 years. Honestly, it's mostly when you hear the girls' stories. I mean, they say it as a matter of fact, but you realize in that moment that how blessed are you and how good your life is, that someone else in a way worse circumstances still moving forward every day with a smile on their face, but you complain on an everyday basis from the smallest to biggest thing. So heart-wrenching, yes, of course, when you hear their stories, what they've been through, especially when it comes to acid attacks and rape attacks. No human should go through that, and unfortunately there are people out there doing this, so hopefully through our cause we can change that. Yeah, very, very nicely said. It is not just about this one particular incident जो किसी के साथ हुआ. This is the reality that these people are living with every day. I'm talking about the girls who come from various backgrounds. It is their reality. It's their day to day. It's not एक one-off accident किसी के साथ कुछ हो गया. It is what they're living, and just to be able to hear them, just to be able to see a smile on their face, just makes you feel like a different person inside. It gives birth to something that you didn't even know that you had inside, and it just makes you a better person for sure. Thank you. First of all, आप सबको मेरा नमस्कार. It's great to be here. I'm here because Shashi and Anu's work is exemplary, fantastic. बहुत ज़रूरी है हमारे देश में गर्ल चाइल्ड के लिए और अभी बॉय चाइल्ड के लिए भी कि इतना सब कुछ प्रयास किया जा रहा है उनकी शिक्षा के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनके भविष्य के लिए. ये जितना भी किया जाए वो कम है, और मैं अपनी तरफ से यहाँ इसलिए हूँ आज कि मैं सपोर्ट करती हूँ इनके इस मिशन को, और विश करती हूँ इनको बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा सक्सेस, कि ये और आगे जाके और उम्दा रूप से लोगों की भलाई के लिए काम कर सकें. थैंक यू. तो आपका सवाल क्या है? सबसे पहले अगर हमारे गांव तक ये बात जानी है तो आज डिजिटल मीडिया की कृपा से बहुत कुछ हो सकता है. आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले पायदान तो आप लोग ही हैं जो हमारी बातें उन तक ले जा रहे हैं, और गांव-गांव में ये बात फैल रही है, सिर्फ शहरों में नहीं हो रही है. बट मैं एक बात बोलूँ, बहुत सिंपल सा, मैं चाहती हूँ कि पूरे भारत में हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, एक स्पेशल बसेस हों जिनका नाम हो बेटी बेटा बस. ठीक है? और उसमें मुझ जैसे लोग और इनके जैसे लोग जो ये इनिशिएटिव कर रहे हैं, ट्रैवल करें और इस बात को फैलाएं, और स्पॉन्सर्स, फिनेंशियर्स, फंडर्स, पॉलिटिशियंस, सोशल वर्कर्स, सबका सहारा लेते जाएं और इस बात को आगे बढ़ाते जाएं. थैंक यू.
बहुत खुशी की बात है कि इस प्रयास को एक तो सब निरंतर 18 साल तक कर पाए, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ऐसे प्रयत्न के अंदर थकान बहुत होती है, मुश्किल होता है इस तरह की चीज़ों को निरंतर आगे बढ़ाना, लेकिन मैं धन्यवादी हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने हमारा साथ दिया इस 18 साल के वर्षों में। मैं धन्यवाद देता हूँ बेटी की टीम को भी कि जिस शिद्दत के साथ, इंटेंसिटी के साथ वो हर साल कुछ ना कुछ करते हैं, और उसी का आज ये रिज़ल्ट है कि 800 से ज़्यादा लड़कियों को हम शिक्षा दे पा रहे हैं। उससे पहले हमने एसिड विक्टिम्स, जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा होता है, लड़कियों पे एसिड फेंका जाता है, रेप विक्टिम्स, छोटी लड़कियां घरों के अंदर ही शिकार होती हैं, भ्रूण हत्या, फीमेल फेटिसाइड, तो जो भी चीज़ें हमारे जो समाज में नारी के प्रति उपेक्षा के तौर में उभर के आती हैं, उसके खिलाफ हम लड़ते हैं। हर साल चैलेंजिंग है, क्योंकि हर साल के अपनी एक नए चैलेंज हैं, एक नई तरह की मांग होती है, उसको पूरा करना और उन लोगों की जो अपेक्षाएं हैं हमसे, उन पे खरा उतरना, वो हमारे लिए सबसे कठिन काम होता है, बिकॉज़ हम उनको लेट डाउन नहीं कर सकते। वो बहुत उम्मीदों के साथ और बहुत भावनाओं के साथ हमारे से लोग जुड़ते हैं, और हमारी कोशिश यही रहती है कि किसी तरह से भी हम उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरें। थैंक यू।
I think it's fabulous, fantastic. Whatever they are doing, I think, you know, जितनी encouragement होनी चाहिए वो कम है और होनी चाहिए. And I wish them all the very best. I really wish them all the best. And I hope they're doing all right. Thank you. Yes. So it's a great initiative by Ms. Anu Ranjan, and yes, Bhool Bhulaiya 3 is coming. So I'm super duper excited and just want my audience to give so much of love, as much love as possible for Bhool Bhulaiya 3, and looking forward to it. I'm really, happy, and I've always admired the initiative that they've taken for Beti. I've had the good fortune, as you know, of performing and also working for the Beti shows so many times. So, मुझे लगता है that it's like a family, and it's a fantastic and a noble cause. और मैं तो यही कहूँगी that बेटी एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, एक बहुत ही अहम चीज़ है हमारी लाइफ में. हम सब बेटियां भी हैं, माएँ भी हैं और बहनें भी हैं. सो विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो ये काम कर रहे हैं शशि एंड अनुरंजन, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक. सो बिग अप टू देम, बिग कंग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग 18 ग्लोरियस ईयर्स. मैं 2 लाइनें ना गा के बताना चाहूँगी आप सबके लिए. सदियों से लिखती आई खूबसूरत कहानी, आँखों में भरे कई सपनों के रंग आसमानी. A dreamer and achiever, that's who I am. I'm a woman, I'm a girl, this is my story. I'm a woman, I'm a girl, this is my story. हम लड़कियां कहानियां लिखती हैं, अपनी कहानियां खुद लिखती हैं. थैंक यू सो मच. Sorry? 18 How many years? 18. The effort, the thought and the nobleness that is behind this event बेटी, इसमें बस सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है. अनुरंजन, शशि रंजन और जितने भी लोग इस बहुत सुंदर कॉज से जुड़े हैं उन सबको ढेरों शुभकामनाएं, बधाई. I truly applaud the effort that is
being put by Anu Ranjan and everybody else. I'm here to celebrate Beti, girl, woman. ढेरों शुभकामनाएं. Thank you. ताली बजाओ, जोर से ताली बजाओ. बेटियों के लिए जितना बोला जाए उतना कम होता है, लेकिन इस इनिशिएटिव के लिए मैं कहता हूँ उससे भी ज़्यादा बोलना चाहिए, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहना आसान है, लिखना आसान है, मुझे लगता है हैशटैग डाल के सोशल मीडिया पे बांटना आसान है, लेकिन बेटियों को पढ़ाना बहुत बड़ी टास्क है और बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि शायद हमारे बचपन में हम उन चीज़ों को देख चुके हैं, लेकिन आज ऊपर वाले ने इस काबिल कर दिया कि हम अपनी बेटियों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जो इस अभाव में हैं कि वो पढ़ नहीं पा रही, और मेरा मानना है कि जो पढ़ाई होती है वो इंसान की ज़िंदगी में बदलाव लाती है, इंसान को इंसान बनाती है। हालांकि बेटियां ऐसी होती हैं जब घर में आती हैं वो पूरे परिवार को इंसान बना देती हैं, तो उनके लिए ये इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर जो इस अभाव में हैं वो पढ़ नहीं पा रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस इनिशिएटिव को और बड़ा करना चाहिए और ज़्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए। हम अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं हम करते हैं, लेकिन सब लोगों को इस इनिशिएटिव में साथ देना चाहिए, क्योंकि बेटी है तो दुनिया है, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि शुरुआत एक बेटी से होती है, फिर वो बहन होती है, फिर वो भाभी, बीवी, माँ फिर होती है। तो पहले शुरुआत बेटी से होती है, सो बी विद बेटी ऑलवेज। थैंक यू। तुम भी कुछ बोलो, बेटियां नहीं बोलती, हम क्या करें। अनु रंजन जी हमेशा बहुत कुछ अलग ही काम करते हैं। उन्होंने टेलीविज़न के लिए अवार्ड बनाए, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, और एक साथ में 18 साल से एक सोशल कॉज को उन्होंने जो आगे बढ़ाया है कि बी विथ बेटी, बेटी फाउंडेशन। और जब भी लड़कियों पे अत्याचार हुए, कुछ भी हुआ है, और उन्होंने हमेशा आगे चल के मदद की है। टेलीविज़न इंडस्ट्री को साथ में लेके, फिल्म इंडस्ट्री को साथ में लेके उन्होंने कुछ अच्छी मुहिम की है हमेशा। और अब ये बी विथ बेटी, बेटी फाउंडेशन, आज लड़कियों को एजुकेशन देना, बेटियों को एजुकेशन देना, वो बहुत बड़ा काम है। आज हम लोग हमारी सोसाइटी में देखते हैं कि हमारे गाँव में, छोटे शहरों में, इवन शहरों में आज बेटियों के एजुकेशन को हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। आज बेटियों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, राजनीति हो, स्पोर्ट्स हो, साइंस हो, स्पेस हो, कुछ भी हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, आईटी इंडस्ट्रीज़ हो, हर जगह पे महिला आगे है। तो महिलाओं को पढ़ाना, बेटियों को पढ़ाना, जो स्लम से आते हैं, जो गरीब है, जिनके पास कुछ सुविधा नहीं है, उनको पढ़ाने के लिए अनु रंजन जी बहुत अच्छा काम करते हैं। बी विथ बेटी ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जरिए भी हंसते हंसाते आपको कुछ मैसेज वाली स्टोरीज भी देते हैं। तो वैसे अनु रंजन जी भी अपने साथ साथ कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो साथ में एक अच्छा ये मुहिम भी चलाते हैं, एक अच्छा NGO भी चलाते हैं। थैंक यू।
देखिए, छोड़ने के बाद जिसको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। जब साथ नहीं, उस सब में वो सब का समय नहीं है बात करने का। उन्होंने मेरे शो में काम किया है, मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा। और छोड़ने के बाद सब लोग कुछ भी बोल सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे मालूम है मैं कैसे काम करता हूँ। सबको मैं 16 साल साथ में लेकर चला हूँ। 16 साल एक ही टीम को साथ में रख के चलना वो छोटी बात नहीं है। और छोड़ने के बाद सब लोग बोल सकते हैं जो चाहे वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको जो भी बोलना है वो बोले। मैं हंसी खुशी का शो चलाता हूँ, पॉजिटिव शो चलाता हूँ, तो ठीक है, ऐसा कुछ भी करने दो उनको। मेरा काम है, मेरा रोज का शो चलाना, लोगों को हंसाना। जब सच्चाई लोगों को पता चलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। We can do it together, Ma. Come. Yes. So I'm very proud to be associated with Beti, I would say for 18 long years, right from the start. And it's something very commendable that Anu and Shashi are doing. And I will always be part of it. And I'm very happy to be here tonight. I'm also a part of this for many years and very happy, privileged. It's an honor, and I always say that when people start something, that itself is a great. It requires a lot of strength, courage, conviction. But to continue to do something what you believe in for years and years to come, that is something to really applaud. And I'm here supporting my friend Anu, and I'm also a mother of 2 girls. Like Suchi, we have girls, so we are here very proud to support the cause and support Anu. So thank you so much for having us here today. एक तो ये बहुत लो है, आवाज़ कैसी आएगी? आ रही है आवाज़ इतने शोर में? हेलो, हाय, नमस्कार, मैं दीपक फराशर हूँ। सबसे पहले मैं बेटी फाउंडेशन को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हर साल इन्होंने मुझे बुलाया और मैं उपस्थित हुआ। बेटी फाउंडेशन मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस फंड रेजर में आप लोग अपना योगदान दें। मैं दीपक फराशर सिंटा, सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन का ट्रेजरर हूँ। अभी हाल ही में एक मसला था जिसमें बेटी फाउंडेशन को हमने दरख्वास्त की थी कि कुछ 2 छोटी बच्चियां हैं 10-12 साल की, जिन्हें स्कूल की फ़ीस देने में दिक्कत आ रही है, और मेरे एक फ़ोन कॉल करने पर इन्होंने मदद की और तुरंत। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है
कि बेटी फाउंडेशन को आप सब सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। Chachu? How are you doing? So good to see you. You look hale and hearty. Sir, take a photo. Sir, यहाँ पे. You're here, huh? फ्रीज हो जाओ, फ्रीज। क्या क्या बोलना क्या है? अठारहवां साल है, ऑलमोस्ट 2 decades जर्नी, और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं इनके साथ इस जर्नी से पहले साल से जुड़ा हुआ हूँ। जब बेटी की शुरुआत हुई थी, ITA की शुरुआत हुई थी, तो मैं तभी शशि और अनु के साथ उनके ऑफिस में बैठा था, और खुशी इस बात की भी है कि इतने सालों में इतना कुछ किया है इन्होंने, चाहे वो फीमेल फीटिसाइड के अगेंस्ट कैंपेन किया हो, चाहे वो रेप विक्टिम्स की मदद की हो, एसिड विक्टिम्स की मदद की हो, और अब गर्ल चाइल्ड को पढ़ाने में मदद कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अ रियली रियली गुड थिंग। यार तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है कि बेटी को पढ़ाना चाहिए। इसमें फिल्में बने ना बने, हाँ यू आर राइट, बननी चाहिए। जितने ज़्यादा बनेंगे उतने ज़्यादा हिंदुस्तान भर में अवेयरनेस आएगा, और ये एक्चुअली इट शुड बी ऑर्गेनिक अकॉर्डिंग टू मी। मेरे घर में बच्ची है, मेरे भाई साहब के घर में बच्ची हैं, हमारी बेटियां हैं, तो हम बेटियों को उतना ही पढ़ाते हैं जितना अपने बेटों को पढ़ाते हैं। आप लोग भी करते रहिए। Years of Beti. Firstly, congratulations Anu ji and Shashi ji. Personally, I feel that everybody in the world needs some kind of help. But nowadays, in current times, the times that we live in, the girl child needs. The girl child, the young woman, needs the maximum support and help, physically, emotionally, mentally, and Beti is doing that for them. So I commend the work that Beti is doing, and like always, I pledge my support to you. Whenever possible, whenever you need me, I'll be there. So congratulations once again on 18 years of stupendous work for the girl, child and women, and your new endeavor of educating the young girl, child in Mumbai. I wish you all the best for that, and needless to say, if you need my support there, I am just a phone call away. Thank you. All the best.
क्या तू लेकर आया है बेटा, वो क्लैरिफाई हो गया है। आपका नाम क्या है? किशन जी, इसके लिए लिखते हैं आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको फ़ोन करूँगा, मैं किसी को कॉल नहीं करूँगा। मुझे सजेस्ट कर दीजिए जब भी आपके पास कोई अफवाह वाली खबर आएगी या कौन खबर आएगी। वेरी एक्सेसिबल, whenever you have technical questions to me, send me WhatsApp or call. I think it's such a commendable thing for them to have taken this initiative and bring this issue to the forefront. And with their effort and the way they have so comprehensively brought this event together as a fundraiser and as a support to the girl child, I think power to Anu and Shashi Ranjan and Beti Foundation. हाँ जी, बहुत पुराना रहा है। जब पहला आईटा जब था उसमें भी मैं था, तब ये मेरी गोद में थी। आज इतना बड़ा हो गया है ITA, आप देख लीजिए। तब से जो है मेरा साथ रहा है। और ये बेटी मूवमेंट के साथ में पिछले जितने भी हुए हैं उसमें साथ रहा। पिछली बार हमने रैम्प वॉक किया था, आपको पता ही होगा, मैं और मेरी जो दूसरी वाली पत्नी है अंगूरी भाभी, उसके साथ। तो बेटी आंदोलन में मैं बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ हूँ और मैं खुद कॉज के लिए हमेशा काम करता हूँ। हमारी एसोसिएशन की तरफ से भी, जो ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला है, उसके थ्रू भी, और शशि और अनु रंजन जी के थ्रू भी हम इस मूवमेंट का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे। और कुछ नहीं है, बिल्कुल उसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि हम लोगों को आजकल OTT के साथ कम्पीट करना है, तो हमें कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम जो है कहीं बट नहीं, हमारा सीरियल तो नहीं होगा, क्योंकि हम बिल्कुल मैच करके चल रहे हैं। थोड़े से नॉटी कंटेंट भी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रीची नहीं, पढ़ाने वाली बातें नहीं, क्योंकि आज का यूथ यही चाहता है। थैंक यू। आई थिंक मेरी कोलैबोरेशन अनु मैम के साथ बस अभी चालू हुई है।
after IT awards, and I think it's going to go very well. बहुत अच्छा है. And बेटी बचाओ initiative is a very good initiative because it empowers the women of the society. तो काफ़ी अच्छी बात है. And आज के तारीख में the men and the women are going equally hand in hand. चाहे कौन से भी सेक्टर में हो, हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है. सो आई रियली अप्रिशिएट दैट. थैंक यू.
for that, please. तिरंगा लहराता है तो पूरे भारत का सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में शूटिंग स्पर्धा में भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी और एक ही स्पर्धा में दो ओलंपिक मेडल जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी मनु भाकर, जिन्होंने हर क्षेत्र और हर कौम के लोगों का सर गर्व से ऊंचा किया है। पद्म विभूषण MC मैरी कॉम, विश्व की पहली महिला आर्मलेस आर्चर, पैरा एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट भारत की शीतल देविका।
इनिशिएटिव बालिग हो गया है 18 साल का, सो इट्स रियली ग्रेट थिंग। और टीवी पे मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटियां ही छाई हुई, बेटियों सिर्फ सफेद कपड़े पहन के आ जाते हैं सेट पे, लेकिन काम करने को सिर्फ बेटियों को मिल रहा है। इस बात से मतलब जितने भी सीरियल बन रहे हैं आप देखिए ना, सिर्फ महिलाओं के लिए बन रहे हैं, मर्दों के लिए कुछ नहीं बन रहा है। मैं सच में बड़ा परेशान हूँ इस बात से कि जितने भी सीरियल बन रहे हैं, सीरियल बनता था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कभी नहीं बना क्योंकि ससुर भी कभी जवाई था। सीरियल बन रहा अगले जन्म मुझे बिटिया कीजो, तो बिट्टू क्यों ना कीजो, बिट्टू भी ठीक है दुनिया में, और एकता मैम तो आई नहीं है, लेकिन वो सीरियल बड़े कमाल के बनाए। और उन्होंने जो फैलाया है सीरियल का दौर कि आज टीवी इतना बड़ा हुआ है, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। लेकिन मैं सीरियल से बड़ा परेशान हूँ, उनका सीरियल देखिए, इसका रिश्ता उसके साथ, उसका रिश्ता इसके साथ, इसका रिश्ता उसके साथ, और सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। मुझे समझ नहीं आती है, सीरियल चला सर, इतना लंबा चला, अभी बंद हुआ दिया और बाकी। मैंने कहा पता नहीं कौन से दिए में बाती डाल दी, दिया बुझ ही नहीं रहा। इतना लंबा चल रहा था तो इसका नाम अखंड ज्योति रख लेते, हमें पता होता इतना लंबा चलेगा। राजन सर आएंगे, मैं उनको जरूर बोलता, उनका सीरियल क्या कमाल है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। बच्चों के आगे बच्चे हो गए, बच्चों के आगे बच्चे हो गए, बच्चों के आगे बच्चे हो गए, फिर भी पूछ रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैंने कहा आपको पता नहीं चल रहा तो बच्चे क्या गूगल से डाउनलोड कर रहे हो। तो टीवी पे सिर्फ महिलाएं छाई हुई है, क्योंकि ये 8 से 11 का सर, वैसे तो आप बेटी का दिन रख लिया आपने, था बीवियों का, और हमें पता आप बीवियां घर में छोड़ के आए हैं जो प्यासी बैठी हुई है, अभी तक उनका चांद इधर लोगों के सामने खड़ा है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि इनिशिएटिव है, चल रहा है। तो आज मैं भी पहली बार है कि मेरी बेटी भी इस लायक हो गई, मैंने देखा था कि उसको मंच पे लाया जा सकता है। तो आज मैं चाहूँगा कि आपने जितना प्यार मुझे दिया है, उसकी शुरुआत को उतना प्यार दें और तालियों से स्वागत करें। मेरी बुराई है, मेरे बेटों की बहन, मेरी दीदी की बेटी, मेरे बाप की पोती और मेरी लाडली, प्लीज वेलकम मान्या ठाकुर। हेलो हाय, हाउ आर यू ऑल, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब, मजा आ रहा है आप सबको? बेटा पिता को पूछ लेते हैं, सीधा सामने ही सब कुछ पूछ लेते हैं। पहली बार मैंने इंट्रोड्यूस किया इसको इतने बड़े मंच पर, इतने बड़े लोगों के सामने, सो कितना बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया मैंने तुम्हारा। हाँ, तो उसमें आपने नया क्या किया है? मैं आप सबको एक बात बताती हूँ, इनको ना एंकरिंग की इतनी गंदी आदत लगी है ना कि ये घर पे भी मुझे ऐसे ही इंट्रोड्यूस करते हैं हर जगह। अब मैं बताती हूँ कैसे। प्लीज वेलकम माय टैलेंटेड डॉटर खाने के टेबल पे। स्वागत करिए मेरी टैलेंटेड डॉटर को झाड़ू मारने के लिए। बेटा मैं प्रैक्टिस कर रहा था, रियाज कर रहा होता, तुम्हें पता नहीं शशि से मेरा वादा हुआ था, उन्होंने जब मुझे फोन किया ना कि बेटी के लिए बुलाया, मैं कहा ठीक है मैं करता हूँ, और आईटी का अगला होस्ट मैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आईटी के अगले होस्ट? यस यस। वाओ, तालियां, एक बार तालियां। आई थिंक अगर आपको आईटी चाहिए तो आज आपको अच्छे से करना होगा। मतलब शशि अंकल है ना, सॉरी बहुत चालाक है। पता है क्यों? क्योंकि ये उनका सोफिस्टिकेटेड तरीका है आपको ऑडिशन देने का। ऑडिशन लिया मेरा? हद हो गई है, ऐसे मत बोल, कम से तुम तो मत बोलना, आंटी देखेंगे कैसा आपको लगेगा। आंटी? हाँ। आप उन्हें आंटी बोल रहे हो? सर एक बार गौर से देखना, मुझसे हार्डली 2 साल बड़ी होंगी वो। नहीं बेटा मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। हाँ, तो ही मैं सोचूं, वरना लुक एट हर, शी इज सो प्रिटी, सो एलिगेंट, एंड उनकी स्माइल, ओह कितनी प्यारी है ना। हाँ, मन तो मेरा भी यही कहने को कर रहा है, लेकिन तुम आई हो ना साथ में। मैं सच बता रहा हूँ, जाके घर में मम्मी को बताना, और मैं नहीं चाहता करवा चौथ वाले दिन किसी का पति अपनी बीवी से पिट रहा हो। नहीं नहीं पापा, आज आप बोल दो, आपको ना जो बोलना है ना आप बोल दो। मैं ना मम्मी को आज नहीं बताऊंगी, अपनी कसम। वेरी गुड, थैंक यू। पर मैं कल बताऊंगी, कल तो पिटने में प्रॉब्लम नहीं है ना। बेटा पिता हूँ मैं तुम्हारा। माय बैड। माय बैड नहीं, माय डैड। अरे मैं माफी मांगती, इट्स अ जेंजी वे टू अपॉलोजाइज। सर ये जेंजी वे जो आ गया ना, मैं बड़ा परेशान हूँ इससे, और सच में ये हमें सिखाती रहती है। मुझे बोली हमने पंजाब से, मैं अमृतसर से हूँ, तो थोड़ा ना इंग्लिश में थोड़ा सा हैंड वेरी टाइट। तो क्या
हमें सिखा रही होती है। जब मैं किसी फिल्म में जाता हूँ, पापा हीरोइंस के सामने अगर कोई गलती हो जाए ना, सॉरी बोलना, सॉरी। मैं कहता क्यों सॉरी बोलना बेटा, एक माफी। मैं हिंदी में मांग लूंगा ना, सॉरी बोलने कभी अपने बाप को नहीं बोला जिसने 3 रातें खराब करके मैं बनाया। हम तो उसको ये बोलते आगे से नहीं करता, आगे से नहीं करता, लेकिन कहती नहीं सॉरी बोलो। मैं कहा क्या होता है सॉरी में? कहती मैनर्स होते हैं इंग्लिश में। मैंने कहा हमारी हिंदी कौन सी बिकनी पहन के घूम रही, हमारी हिंदी में भी उतने मैनर्स हैं। तो मैंने ये सॉरी बोलना सीखा। कभी गलती हो जाती है किसी हीरोइन के सामने तो अपन बोल देते सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा एक तो सॉरी निकलता 3 बार, पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस है हमें, ऐसा लगता है पहली सॉरी की स्पेलिंग गलत है, दूसरी सॉरी को पोलियो हो गया, तीसरी चौथी सॉरी हमारी ठीक होगी। तो अच्छा एक शब्द मैंने और याद कर लिया, इट्स ओके। मैंने कहा मैं भी बोलूंगा, ठीक है। तो एक बार एक लड़की से चाय गई, उतनी चाय नहीं फैली जितना मैं फैला। मैंने कहा कहती क्या माफी, कहती आई अपोलोजाइज। मैं कहता माफी, और उसने गुस्से में बोला आई एम सीरियस सेइंग आई अपोलोजाइज फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट। तब मुझे समझ में आया। मैं कहा नहीं मांगी तो उसने माफी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, एक कदम ना हमसे आगे निकल जाती है। अच्छा मैं था पंजाबी आदमी, मैंने क्या किया, मैंने अपोलॉजी भी याद कर लिया, सॉरी भी याद कर लिया, पार्डन भी याद कर लिया। मैं क्या अब अगली बार एक लड़की थी ना, वो बैग से तरी थी, मेरी आंख पे लगी। मैंने कहा कहती क्या? मैं क्या माफी? कहती माई बैड। अच्छा जिस कॉन्फिडेंस से उसने बोला मैं समझ गया, मांगी तो इसने माफी है, लेकिन लड़की एक कदम आगे निकल गई। ये जो जेंजी वाले हैं ना सर, हमसे एक कदम आगे निकल जाते हैं। हम कुछ भी याद कर लें, मैं याद करके जाता आई एम सरप्राइज, कहती आई एम शॉक्ड। मैं क्या राजीव इतना आगे निकलते हैं। मुझे लगता है जो हम 90s वाले ना, हमारी इंग्लिश है राहुल गांधी, चल ही नहीं रही, और जेंजी वालों की इंग्लिश है मोदी, जहां नहीं चाहिए वहां भी आ रही। सही ना बेटा? लेकिन बात बोलूं सर, अभी मैं कृष्णा के साथ शो में था तो उन्होंने मैं बताया कि मैं बेटी में ऐसे परफॉर्म करने जा रहा हूँ। शशि जी ने बुलाया, कहते शशि जी बहुत काम देते हैं, बस पैसे नहीं देते। पापा हर काम पैसे के लिए नहीं करते हैं पहले तो, क्योंकि पैसों से भी बड़ी काफी सारी चीजें हैं, जैसे इस मंच पे परफॉर्म करना। आज आप देखो एक बेटी के लिए नहीं, कितनी सारी बेटियों के लिए परफॉर्म कर रहे हो। पहले मुझे भी यही लगता था, जिस दिन मैं स्कूल की फीस भरने गया, सच कह रहा हूँ, उस दिन मुझे लगा कि पैसों के लिए भी काम करना चाहिए। सच बता रहा हूँ, जितनी इनकी सर 1 महीने की फीस है ना, मैंने 3 साल में ग्रेजुएशन की थी उतनी फीस में। 3 साल में? हाँ 3 साल में? यस। देखिए हमने आपने कितना 3 साल में सीखा है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है, इनसे ना आज भी थर्स्टी क्रो में ना 30 लड़कियां निकलेगी, ये मैं आपको बता सकती हूँ। इतना ना हम 1 महीने में सीख लेते हैं। बेटा सीख तो तुम लेते हो, लेकिन फीस हमने भरी होती है उसकी। मैं बैठो, मैं ना इनको बताता हूँ, मैं एडमिशन जो मैं इसकी कराने गया, बेटा उधर बैठो जरा, मैं जरा आज बताता हूँ इसकी एडमिशन कितनी मुश्किल हुई थी मेरे लिए। सर हमें 90s वाले, मैं आपको बताता हूँ शशि जी, जो कष्ट मैंने झेले मुंबई में अमृतसर से, तो मुझे लगा कि भाई वो मेरे बच्चे नहीं झेलेंगे, तो मैं इनको पढ़ाऊंगा। ये हमारे पहले जज हैं जी, दुनिया को लगता है कि हमारे पहले जज सिद्धू साहब और हैं, लेकिन राकेश बेदी सर हमारे पहले जज है, जो हमने पंजाबी में पहला शो किया था, उसके जज राकेश बेदी सर आपकी वजह से परफॉर्म कर रहे हैं, वरना ना कर पाते। इन्होंने मुझे रखा शो में। सर मैं बता रहा था कि जो हम 90s वाले थे, हम यहाँ चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें, और मैं इनको लेके गया सबसे अच्छे स्कूल में। रोहित सर मुंबई का सबसे अच्छा स्कूल, मैंने कहा मैं इनको वहाँ पढ़ाऊँ, कसम से बता रहा हूँ, इतने अच्छे स्कूल है ना, 5 स्टार होटल से बेटर स्कूल, AC कमरे, बहुत बड़ी ये चीज़ है। मैं हमेशा कहता हूँ करना कहना बहुत आसान है। हम जैसे लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं बेटी को सपोर्ट करने के लिए, शायद एक दिन सपोर्ट करने आते हैं, या बैकों का कहीं सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन 18 साल तक सपोर्ट करना, दिस इज रियली नहीं, आपके हर दिन जो आप सपोर्ट करने आते हैं बहुत लंबा रास्ता चलता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर डूइंग दिस शो। दिस शो इज गोइंग टू टेक अस वेरी फार, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग एवरीवन लाफ। And on that note, now that you all are having a bit of fun and laughter, now it's about some serious, very dapper dudes are going to be coming on stage. So these two are very, very talented, as we know, and they've entertained us on television and film. So please welcome Rohit and Rohit Roy. हाय, तुम्हारा माइक चल रहा है? मेरा नहीं चल रहा होगा तो आवाज़ पहुंच जाएगी यहीं तक। आवाज़ आ रही है? तो रोहित और मैं
I picked him up this evening. गाड़ी में हम लोग लाइन्स रिहर्स कर रहे थे. मैं ऐसा बोलूँगा, फिर तू ऐसा बोलना, फिर मैं ऐसा 2 शब्द बेटी के लिए बोलूँगा, फिर तू बोलना, क्योंकि मुझे आंकड़े मैथमेटिक्स वाले जितनी चीज़ें वो याद नहीं रहती. तो मैंने बोला रोहित तू ही बोल देना. वो 18 ईयर्स और तो अनुष्का बोल के चली गई है ना. तो वी आर जस्ट रिमाइंडिंग. खैर गुड इवनिंग. हुआ ये कि फिर जो बच्चियों ने एक्ट किया जी, आई एम टेलिंग यू ऑल्सो, इन्फॉर्मिंग देम ऑल्सो बिफोर आई mess up, that the kids, Rohit and me are both fathers. We both have daughters, and we all know that a daughter's love is unparalleled. और हम दोनों वहाँ कोने में बैठे थे. पहले जो बच्चियाँ आई, ब्यूटीफुल जी को उन्होंने ट्रिब्यूट दिया और फिर थोड़ा इमोशनल करके चली गई. तो आधी लाइन्स में वहाँ भूल गया. फिर राजीव आया अपनी बेटी के साथ, उसने हंसाया और अंत में जो बोल के गया तो मैं बाकी की लाइन्स भी भूल गया. शशि जी, अनु जी, सॉरी, ये आइडिया मेरा था कि मेरे साथ मेरे भाई साहब स्टेज पे आए. आपने कहा था कि अनुष्का के साथ होस्ट कर दो. मैंने इंसिस्ट किया कि मेरे बड़े भाई साहब हैं, मेरे साथ होस्ट करेंगे. सारी लाइनें भूल गए. पहली लाइन याद दिला दो. गुड इवनिंग, आई एम रोहित रॉय. Good evening, I am Rohit Roy. And I am Rohit Roy. Welcome to the 18th edition of the Beti Awards. एक बार जोरदार तालियां शशि और अनु के लिए. The unsung heroes. ये मुहिम उन्होंने 18 साल पहले 2006 में शुरू की थी और मैं इंसिडेंटली उनके साथ उनके कमरे में बैठा था. और यहाँ तक पहुँचना, जैसा कि राजीव ने भी कहा, बहुत शिद्दत से काम की है पूरी टीम ने. और जो फीमेल फीटिसाइड, रेप विक्टिम्स, एसिड विक्टिम्स के लिए लगातार ये लोग काम करते आ रहे हैं. They've helped them deal with their, not only their trauma and despair that they've gone through, but given their jobs, settled them in society, got a lot of them married, and so fantastic job done. And also the new feather in the cap. Past couple of years, Beti has been actively involved in educating the girl child. और पिछले 1 साल में almost about 1,000 girl childs in Mumbai they have educated. So round of applause. I think that's fantastic. Cornerstone every solid society. But I still feel personally that all this, whatever we're doing here, is still secondary. Primarily, we need to change the mindset of the Indian society. It's amazing how we live in a country with cows as head to goddesses. हमारा मस्तक माँ के सामने झुकता है, लेकिन उसी कंट्री में हर कोने से you hear about atrocities from various corners. And unless we teach our sons to grow up to be real men and treat women correctly, you know, there's still a long way to do that. But I think that will be a definite change. And I think that's what we should do instead of teaching only our girl child to be safe or to be growing up in a society which is scary. So I think we need to educate our betas also. Betas also, yes. Also, नहीं वो तो पता नहीं है, लेकिन कुछ मन में आ रहा है वो बोल देता हूँ. Just before we came on stage, Rajiv, his daughter, and the young girls from Daisa, they said the same thing कि बेटी जो है वो पंख लेके पैदा होती है. हमारा काम है अपनी बेटी के उस पंख को हवा देना. अनु जी, शशि जी, आप सिर्फ अपनी बेटियों को नहीं, औरों की बेटियों के पंख को भी हवा दे रहे हैं. So round of applause for you, sir. In the car we were discussing what an amazing job you guys are doing continuously with no commercial deals in mind, and these kids that you're जो education वाला है, I think it's fantastic. तो हम लोग अब जाएं और कुछ बोलना है? वो पीछे से रिहर्सल करके रेडी है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, lots of people who have been supporting Beti, and lots of people who have done good work, who are being awarded tonight. So we will. The clapping should continue, the applause should die down. Anushka, come on stage. We want to say something to you as well. Huge round of applause to the original Beti. Thank you so Thank you, much. ladies and gentlemen. So, ऐसा लग रहा था कि आप लोग ने काफी हंसे नहीं उसके पहले, तो थोड़ा और हंसने के लिए आप
फिर हम बुलाने वाले बहुत स्पेशल गेस्ट है उनकी बेटी को, जो एक कॉमेडी सेंसेशन है. He's a 2-time winner of Comedy Circus and he's the world's fastest mimicry artist, known for his amazing performances all over the world. Joining him is his talented daughter, an actor, singer, and a voiceover artist whose fresh and relatable humor resonates with audiences of all ages. So please put your hands together for VIP and his daughter, Dhwani Pawar. But before that, पंचायत के प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं, तो उनके लिए आते हैं. Okay? Just give me 1 second. पंचायत यहाँ बैठा है, ताली नहीं बज रहा है. हाँ, ठीक लग रहा है. अरे जहाँ प्रधान जी होते हैं तो पंचायत तो लगती है ना. अरे सचिव जी भी आए, अरे शशि जी भी आए. कैसे सचिव जी? बढ़िया है, सब ठीक है ना. अरे बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया, माँ कसम बहुत अच्छा लग रहा है. अब पूरा का पूरा जो है हमारे पंचायत सीन आप देख रहे हैं. अरे वो कहाँ गई हमारी बिटिया? वो जो 18 साल हो गया आपका ये प्रोग्राम को, कहाँ है हमारी वो? अरे अनु जी कहाँ गई? अरे लोग कहते कि 18 साल हो गए हैं, लेकिन हम कहते हैं 18 साल उनको हुआ है अभी तक. एकदम ऐसा लग रही बेटी की बेटी दिख रही है, शादी में नहीं हुआ ऐसा लग रहा है. सच में. और हाँ, आप सोच रहे कि भैया हम क्या कर रहे हैं? अरे हमारी बेटी भी आई है, VIP की बेटी आई है. बोलो अपनी बेटी को. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कॉर्डिनेटर VIP और आज इस बेटी मूवमेंट पर मेरी भी बेटी आई है. उसका नाम है ध्वनि पवार और आने जा रही है. आई है मेरी बेटी, जोरदार ताली मेरी बेटी के लिए. एक मिनट, मैंने मेरी बेटी को लाया था. आप कौन? I'm Shakira. और मैं फकीरा. अरे मेरी बेटी ध्वनि का है, उसको आप जाइए. Dad, I'm your daughter Dhwani. Ladies and gentlemen, myself Dhwani. It's my utmost pleasure to perform here in front of you all. And Dad, तू इतनी अंग्रेजी बोल रही है. तू मार्क जकरबर्गर की बेटी है क्या? Dad is Zuckerberg. Zuckerberg क्या? उर्दू नहीं, इंग्लिश. Zuckerberg. अभी जो बोलने में इतनी तकलीफ हो रही है, हिंदी में बोल रहा है. हिंदी में तेरे बाप को समझ नहीं आती. अच्छा ठीक है, देवी और सज्जनों, आप सभी के सामने मुझे परफॉर्म करके बहुत अच्छा लग रहा है. मेरा नाम है ध्वनि, ये है मेरे डैड VIP और ये है इनका मोटा पेट. मेरे पेट के बारे में, पेट के बीच में क्यों ला रही हो? आपका पेट ही बीच में आता है डैड. इतना मोटा पेट मैं आप लोगों को क्या बताऊं. जब ये एयरपोर्ट से निकलते हैं घर पे आने के लिए, सबसे पहले इनका पेट घर में आता है और आधे घंटे बाद डैड आता है. बस ज्यादा बेइज्जती कर रही हो. अरे अभी तो शुरू हुआ है डैड. इनकी नाभि के बारे में मत बोलना प्लीज. इतनी गहरी. मेरी मम्मी ना इनको प्लेट में खाना नहीं देती, इसकी नाभि में दाल डाल देती. बस बहुत हो गया. बस बेटा. अच्छा, खाने से याद आया मुझे, आप लोगों को लगता होगा इनका मोटा थुल क्यूट सा पेट जो है वो मतलब ज्यादा खाने से बाहर आए. इट्स नॉट दैट. इनके अंदर 150 to 200 एक्टर्स रहते हैं. पूरा का पूरा बॉलीवुड इनके पेट के अंदर है. मैं आपको थोड़ा सा प्रमाण बता देती हूँ. अक्षय कुमार. हाँ जी, सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बेटी में. अरे थे वाह कसम मस्त रहे बाबा. मेरी बेटी भी आ सकती है यहाँ पर. अजय देवगन. मेरी बेटी भी यहाँ पर होती लेकिन आज माँ की शक्ल. हाँ, सब कुछ चलेगा. अजय खान. हाँ से 50 को दूर कभी मैं बेटी बात करता सबसे पहले. वाह, तालियां. शशि सर, अनु मैम, I would love to say इनके पेट में एक अलग IT अवार्ड चल रहा होता है. I swear. And Dad, आपको एक और लास्ट चीज मैं कहना चाहती हूँ. लास्ट बेइज्जती इससे ज्यादा मैं आपकी करूँगी नहीं. He is a fraud आदमी. क्रिमिनल है मेरे डैड. मैंने क्या फ्रॉड किया? एयरलाइन के साथ जो क्राइम करते हो बताओ मैं सब लोगों को. बता. एक टिकट पे 150 लोग जाते हैं इनके साथ. Is that even fair? जान दे. तूने इतनी बेइज्जती ऐसा लगता है तू मार्क जकरबर्गर की बेटी होनी चाहिए, मेरी नहीं होनी चाहिए. अच्छा, आपको पता है मैं मार्क जकरबर्ग की बेटी थी, मैं क्या करती? क्या करती? आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक डिलीट कर देती. नहीं, तू मेरी बेटी ठीक है. ओके. बेटा, बेटी से याद आया, जैसे मैंने बताया कि तू मार्क जकरबर्ग बेटी होती है. अगर जितनी भी बॉलीवुड एक्टर्स है जिनका जन्म उनके घर में हुआ है, अगर वहाँ ना होते दूसरे सेलिब्रिटी घर में जन्म होता तो क्या होता?
सोचो जावेद अख्तर साहब के घर में अगर अपनी नेहा कक्कर नेहा कक्कर होती तो क्या होता? क्या होता? जी नमस्कार आदाब। जी मेरा नाम जावेद अख्तर है। सुन रहा बजा दीजिए। जिंदगी तो सांसें हैं, सांसें हैं तो बहुएं हैं, बहुएं तो बेटियां हैं, बेटियां हैं तो मेरा भूख नहीं प्यास ऐसा लगे हम सबका इलाज। जोरदार तालियां मेरी बेटी नेहा अख्तर के लिए। क्या गाया है? थैंक यू डैडी, थैंक यू सो मच। तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ क्या गाया है? क्या? नहीं शुरुआत कैसे गाना कैसे गाया था? बस 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 ऐसा नहीं लग रहा कि आज इस बॉलरूम में मच्छर घूम रहे। अरे ऐसा कोई गाता है? दूसरा पहला आंसर क्या है? ऐसा लगे हम कैसे मैं बताऊं, लगे है सब कुछ अपसेट डाउन। बस जो तुमने गाने में जो हरकत की है, थैंक यू। दोबारा मत करना। ओके। तो ये बता दो किसकी बेटी हो? द ग्रेट राइटर जावेद अख्तर की बेटी हो। इस तरह का बेहुदा गाना गाती हो, तुम इस तरह कर रही हो, मैं तुम्हें समझता हूँ कि इस तरह गाना गाओगी तो तुम्हें यहाँ से उठा के फेंक दूंगा। बस जिस तरह से इसने गाने में माँ को बुलाया है, माँ का नाम लेके जो मुझे डराया है, बहुत बेहतरीन गाया। जोरदार तालियां मेरी बेटी के लिए। मैंने मौसम बदल दिया। अरे मौसम बदल दिया और कुछ बदल सकते हैं हम। This was fun actually, मुझे तो मजा आया। आप सोचिए अगर नाना पाटेकर जी के घर पे अनन्या पांडे पैदा हो जाती थी तो क्या होता? चंकी पांडे की डॉटर अगर नाना पांडे में पैदा होती तो Yes, तो क्या होता? क्या होता? Oh my God, what's happening? Is that like a generator on or something? What is happening over here? I don't understand. Hello? कौन है यहाँ पे? अरे मैं हूँ मैं तेरा पापा मैं हूँ। What is this? मैं I get so confused. He's my father. कभी-कभी मुझे लगता है कि मेरे पापा या नाना है. That's the confusion. क्या कंफ्यूजन तेरे को? उस दिन ना मैं actually गई थी मेरे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में and that teacher was yelling at me. She was telling me कि ये आपके पापा है कि नाना है. This is the confusion, bro. अच्छा है। ये मेरी बेटी है, बहुत भोली है, इतनी भोली है इसे पता नहीं क्या है। इसका बाप किसान है, खेतों में सब्जियां उगाता है, लेकिन इसे सब्जी नहीं पता कौन सी सब्जी कैसी है, क्या नाम है उसका। बता बेटी ये सब्जी का नाम क्या? बोल। पुदीना। अरे पालक है वो। पुदीना तो पालक को पुदीना क्या है ये क्या है? That's भिंडी। भिंडी नहीं है वो तोरी है छोरी। अब तोरी तो गोल रेड रसीला जूसी। अरे वो टमाटर है। टमाटर तो वो होता है ना ग्रीन कलर का लंबा सा लौकी जैसा। अरे वो लौकी ही होती है वो। कंट्रोल कैसी बात कर रही है तू? सॉरी डैड। इतनी भोली बच्ची है मेरी, इतनी भोली बच्ची है। जब मैं कहीं खेतों में काम पे जाता हूँ मैं बोलता बेटी खाना बना के रखना। मैंने बोला कि बेटा आज बंद गोभी है बना के रखना, तो उसने कुछ किया ही नहीं। क्यों नहीं किया बता? Actually it was बंद गोभी। So डैडी जब मुझे बंद गोभी दी तो मैं बंद गोभी को खोलने लग गई कि उसके अंदर क्या बंद है। तो खोलते खोलते मुझे उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। कितनी भोली बच्ची है ये। कंट्रोल 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 कंट्रोल। Control is my new film on Netflix. You can actually go and watch. अरे तू चंगी के घर में पैदा हो जा। अच्छा उधर ही अच्छा है। नाना की घर में नहीं, नाना की तरफ से नाना। Anyway, मुझे actually आपका बंद गोभी पसंद नहीं, मुझे आखिरी पास्ता ही पसंद है। Thank you. ओके। और सोचो बेटा अगर शत्रुघ्न सिन्हा जी के घर में कंगना राउत पैदा होती तो फिर क्या होता? तो फिर क्या होता? चले को आग कहते हैं, बुझे को राग कहते हैं। और जिसके सामने कोई बात भी बात नहीं कर सकता उसे कंगना रनौत कहते हैं। खामोश! आप मुझे कह रहे हैं? अपने आप को बोल रहा हूँ। वैसे भी आप मुझे खामोश नहीं कर सकते हैं। मुझे बात करना बहुत पसंद है। मेरा नाम है ना हमारी कसम सलमान और हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ी इसको फोर्थ पढ़े थे एडमिशन लिया जब फोन नंबर में दो को ना और खामोश भी मैं हो को ना। अरे ओ मेरे बधाइयों की लल्ली मेरी अर्थी की फूल लगता तू गई है फूल। हा हा हा। मैंने आप भूल गए हैं
मैं क्या भूल रहा हूँ? You forgot कि आपको मेरे लिए बर्फी लानी थी। मैं आज पास हुई हूँ एग्जाम में। क्या? आपको मेरे लिए बर्फी लानी थी, बर्फी। बर्फी लाया हो मेरी बच्ची? ये ले। Oh my God, ये तो लड्डू है। लड्डू ने बर्फी है। इनकी ये जो आदत है ना, ऐसे ऐसे करके किसी भी चीज को ये गोल बना देता है। उस दिन क्या पता क्या हुआ, एक आंटी आई थी मेरे घर पे, उन्होंने आंटी ने इनको कहा कि ये लो मेरा बच्चा संभालो। अब उस बच्चे को ऐसे ऐसे करके इन्होंने गोल बना दिया, फुटबॉल बना दिया। और जब आंटी ने आके पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है, तो पता इन्होंने क्या किया? मैंने बोला ये लो आपका बेटा। ऐसे ठीक करता है अपने बच्चे को। अदरक है ये आदमी, फैलता जा रहा है, पागल हो गया अब। और बस मैं जा रही हूँ यार, I'm so scared of you right now. नहीं बेटा रुक इतना मजा आया बेटा, बहुत मजा आया। और मैं ये तो मस्ती की बात कर रहे थे, कॉमेडी कर रहे थे, लेकिन वाकई में मैं चाहूँगा कि हर जन्म में तू ही मेरी बेटी हो, और ये चाहूँगा कि ऐसी बेटी भगवान हर किसी को दे। शुरुआत मुझसे करे। Thank you, Dad. Thank you so much. And equally, I think हर daughter को ऐसे ही father चाहिए जो उनकी बेटियों को उड़ान दे। So thank you so much, and I'm very lucky to have you. और आपकी तरह father हर लड़की को मिले। मेरी तरह फादर हर लड़की को मिले? हाँ। माँ को पूछा? डैडी आज करवा चौथ है, मम्मी अब भी कभी व्रत खोल देगी गुस्से में। मम्मी खा लो। Thank you all so very much for being here. You have been supporting Beti continuously, and it's thanks to all your support, love, that we have now educated over 2,800 girls. And today you are going to be meeting some of the girls who have done fantastically well and become sales tax officers, lawyers, doctors, MSc, etc. So they're going to be coming on stage right now. Before that, we would like to clear Amy. We always ask them about how is it that we are helping them? Are we actually being able to help anybody? Is this what we do every year making a difference for the lives of the girls that we are helping in these schools and everywhere? And they asked us that if we could shoot something so that they can voice what they feel. And I would love to share that with all of you right now. A small lady, we'll show you and then we're going to get them on stage. Thank you. To call a few people who've been our sponsors and donors and taking care of their education on stage to hand over a little something to these girls. I'd like to call Mr. Rakesh Roshan and Sunaina Roshan, please. Pratiksha Halikar. Is a state tax inspector. First of all, good evening everyone. Thank you so much for giving me this opportunity to present myself here. I would like to shift to my mother tongue, which is Marathi. I feel we express better in our mother tongue. So, काही गोष्टी होत्या ज्या मला I hope you all understand that much of Marathi. Yeah? Okay. So काही गोष्टी होत्या मला बेटी असोसिएशन बद्दल आज कळल्या. काही दिवसांपासून मॅडम लाईक आमच्या स्कूलचे टीचर्स मला कोऑर्डिनेट करतायत की अशी अशी संस्था आहे, बेटी असोसिएशन आहे आपल्या स्कूलला, लाईक दे आर फंडिंग I think 832 something girls annually. So I think it's a big deal. मला बेटी असोसिएशन त्याच्या नावामध्येच कळते की त्या मुलींसाठीच काम करतायत. टीचर्सकडून मला कळलं. आय फील जेव्हा आपण एका मुलीला शिक्षण देतो, when we educate a girl, आपण त्या फक्त मुलीला शिक्षण नसतो देत, आपण त्या मुली लाईक एक मुलगी जेव्हा शिकते तेव्हा तिची पूर्ण फॅमिली शिकते. फॅमिली नंतर तिचा तो पूर्ण जो आजूबाजूचा सराउंडिंग असतो, ती ज्या एरियामध्ये ती राहत असते तो एरिया पूर्ण एज्युकेट होत असतो. आणि याच्यामुळेच ॲक्च्युली आय फील की एरिया एज्युकेट होतो अँड देन पर्यायाने आपल्या स्टेटची आणि ते नेशनची सर्व्हिस आहे. मला असं वाटतं की पर्यायाने नेशन पण डेव्हलप होत असते.
So I feel educating a girl it's a national service. आणि ही नॅशनल सर्व्हिस बेटी असोसिएशन करते, मॅम करतायत. सो थँक्यू सो मच की तुम्ही एवढ्या मुलींना लाईक स्वामी विवेकानंद स्कूलच्या एवढ्या मुलींना फंड करताय, स्पॉन्सर करताय. अँड मला ऐकायला आलं की तुम्ही लाईक प्रोग्रेस रेकॉर्ड पण चेक करता त्यांचा. सो इट्स अ बिग डील ॲक्च्युली. आणि काही मुली आमच्या स्कूलमधल्या आलेत त्या बॅकस्टेजला उभ्या आहेत, तर तुम्ही ऐका. जेव्हा आपल्याला एखादे लोक संधी देतात, जेव्हा आपल्याला अपॉर्च्युनिटी मिळते, तर तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे त्यांना रिव्हर्ट बॅक करायची. तर जेवढ्या पण मुली इथे आहेत त्यांनी त्यांच्या जाऊन फ्रेंड्सना सांगायचं आहे की आपल्याला ही संस्था एवढे एवढे पैसे पुरवते, आपल्या शिक्षणासाठी पुरवते, तर आपली ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. जी अपॉर्च्युनिटी मिळाली आहे, जसं मराठीमध्ये म्हणतात की आपल्याला संधीचं सोनं करायचं आहे. जी अपॉर्च्युनिटी मिळते तर ती आपल्याला लाईक गोल्डन अपॉर्च्युनिटीमध्ये कन्वर्ट करता यायला पाहिजे. त्याच्यामुळे तुम्ही स्वतःचं रिस्पेक्ट डेव्हलप करू शकता. ऑब्व्हियसली तुमच्या स्कूलला तुमच्यावरती प्राऊड फील होईल आणि ऑब्व्हियसली बेटी असोसिएशनला तर प्राऊड फील होणारच आहे. सो थँक्यू सो मच वन्स अगेन मला ही संधी दिली आणि बेटी असोसिएशन आमच्या स्कूलला एवढी फंडिंग देते त्याच्याबद्दल. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इतना ही कहूँगा कि ये बेटी मंच पे जो मैं खड़ा हूँ, ये बेटी मंच का एक मंदिर है. आप जितना पूजा करेंगे उसका फल आपको मिलेगा. Hats off to Anu, Shashi and the whole Rajat family for making this temple, and I pledge to be there with you all till I can. Thank you so much. I'd like to call Mr. Ramesh Tarani and Varsha Tarani ji, and they have a postgraduate in science, and I'd like you the very best always in life, and it's great to see how far you've come and you go along. Pratibha Bhalekar. Pratibha is a postgraduate. Hello everyone, good evening. My name is Pratibha Bhalekar and I have done my master's in microbiology, and now I am currently working in a nutraceutical industry as a senior QC microbiologist. So first of all, thank you everyone for selecting me for this opportunity. And हाँ, मुझे ये भी एक बात बोलनी है कि मुझे ऐसा लगता है जो काम बेटी एसोसिएशन कर रही है वो रियली कमेंटेबल है. बिकॉज हम बेटियों की आंखों में सपने तो बहुत रहते हैं, लाइक सपने हैं, बट वो गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट होना भी ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है, जो कि बेटी एसोसिएशन वो प्रोवाइड कर रही है. सो रियली थैंक यू फॉर दिस. या थैंक यू. I would like to genuinely bless Anu and Shashi for doing such a wonderful job, and I hope they succeed till the end. Jai Mata Di. I'd now like to call Shashi Ranjan.
And I'd like to call Dhaneshwari Bole. She's studying now to be a doctor. Good evening, everyone. This is Dhaneshwari Ramdas Bole. I'm currently studying in 11th in Don Bosco. I would like to start my speech with a quote. If you educate a man, you educate an individual. But if you educate a woman, you educate a nation. And that is true. My mother is a maid and my father is a laborer. My father is most probably absent right now. And sorry. It's really difficult for her to run a family, and when I was worried about how will I raise money to fund my schooling and all, Anuranjan ma'am came like an angel in my life and gave me the support that I wanted in absence of my father. So I wish God gives all the kindness to you. Thank you. She's a very brave girl. Give her a big, big, big. She had the courage to speak so openly about what she's going through and what she wants to achieve. And with what confidence. God bless you, Betty. You'll go miles. Please accept this small thing from us. I don't want to ever beat you. You always make me cry whenever you beat me. I'll just take a quick second. Anu Shashi, on behalf of all of us here at JW Marriott Juhu, thank you for giving us the honor and privilege for being part of this fantastic initiative. We feel so honored that we are part of such a big cause that you're addressing. And standing here, especially seeing this young lady speak so well, is really very heartwarming. Yeah, so more power to both of you. Yeah, and let this go bigger and better by the year. But thank you again. Okay, before I leave, मैं जीतू जी, राकेश जी, रमेश जी, पंकज और मेरे सारे जो दोस्त यहाँ सामने बैठे हुए हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन सभी लोगों का जो सालों साल से हमारे इस कॉज में हमारी मदद करते रहे। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि दो तरह की चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है जहाँ तक एम्पावरिंग वुमेन इज़ कंसर्न। एक तो ये है कि आप फिजिकली जो भी उनके कष्ट हैं या जो भी उनकी ज़रूरतें हैं आप उन्हें पूरा करें, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे जो देश की मानसिकता है, पुरुष मानसिकता है, उसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। बचपन से हम सुनते आए हैं, मैं अपने घर में भी सुनता था, लड़का जो है माओ का हमेशा बहुत लाडला रहा है। मैं भी रहा हूँ, मुझे भी मेरी माँ सबको प्यार करती थी, लेकिन शायद मैं बड़ा लड़का था तो थोड़ी सी मोहब्बत मेरी तरफ ज़्यादा थी। और लड़कियों के लिए प्यार होता था, लेकिन कहा जाता था कि ये तो पराया धन है, किसी न किसी दिन इसको जाना है। तो एक ये मानसिकता है कि लड़कियां तो इस घर की है नहीं, कहीं एक बीच जो है बचपन से पुरुष की मानसिकता में होता है। आई थिंक यही एक मेन कॉज है जो सोसाइटी के अंदर ये डिसाइड करता है कि पुरुष जो है वो स्त्री से ज़्यादा पावरफुल है या उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। ये मानसिकता जब तक चेंज नहीं होगी तब तक आरजीकर हॉस्पिटल जैसे किस्से या लड़कों को पढ़ाया जाए और लड़की घर में चूल्हा चौका करे या जो भी असमताएं हमारे देश के अंदर रोज़ आपके सामने आती हैं वो चलती रहेंगी। तो हमें न सिर्फ अपने परिवार में, अपने दोस्तों के अंदर, अपने पड़ोस के अंदर, अपने काम करने वाले लोगों के पास कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि वुमेन के अगेंस्ट या कोई ऐसी चीज़ जो उनको अनइक्वल कर रही है, उसके लिए हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। और हम चाहे
बाय फाइनेंस मदद ना करें, लेकिन एक माइंड सेट को चेंज करने में आई थिंक हम सब मदद कर सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि ये आगे बढ़े। थैंक यू। Before we go, I just want to call the girls who you saw in the video on stage. I just want to say hello. Adarsh, Shri Sagar, Vaishnavi Thakkar, Akansha Jagam, Disha Todankar, Ritika Ben and Priyanka Gupta, Aditya Singh, please come on stage. Even Anushka. And thank you. Hello everybody, good evening. I was just sitting over there and I was talking to my friend Anusha over there, and I could see her visibly shaking. She was tearing up and I was just holding my tears back. लड़कों को कहा जाता है कि यार रोना नहीं है, but that's absolutely untrue. What every girl over here has shared and shown us is just this pure innocence that they've shown us, and it has moved me. I hope it has moved everybody out there. We just want to give you all a little thank you, and then you all can say good night to everybody, है ना? So can I get Priyanka? Priyanka? Yes, please let applause keep going on. अच्छा, आई होप अगले साल आप फिर परफॉर्म करें, आप डांस करेंगे अगले साल।